بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، بیان کا عنوان ہے مزاروں پر سجدہ کرنے والوں۔ جی ہاں دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعت اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے والوں کا کس طرح بیان کیا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، اس کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا، پتا پتا پیدا کرنے والا، ایک ایک قطرہ پیدا کرنے والا، ایک ایک کنکر پہاڑ کی بنانے والا۔ دنیا کی بعض چیزیں دیکھ کر لوگ بعض غور کرتے ہیں، اگر کوئی انجینئر، کوئی ہنرمند 4 فٹ کی چھت بنا دے اور اس کے نیچے کوئی تھمبا، کوئی ستون نہ دے، لوگ تعجب مانیں گے، دیکھنے جائیں گے، اخباروں میں شور مچے گا، ریڈیو اور ٹی وی پہ ہنگامہ ہوگا، فلانے ملک کا اتنا عظیم انجینئر ہے، اس نے 4 فٹ کی چھت بنائی، نیچے سہارا کوئی نہیں اور وہ کھڑی ہے، دنیا دیکھنے جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کارروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی؟ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی، جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا۔ پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے، دل و دماغ جسم بھی میں نے بنایا، زبان میں نے بنائی، آنکھیں کتنی پیاری پیاری میں نے دی، ایک بات مان جا میری، یہ جو تیرا سر ہے یہ تیرے جسم کا سردار ہے، تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ میں بے نیاز خدا ہوں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تو بندہ میرا ہے، میں نے تجھے بنایا، میں تیری موت بھیجوں گا، میں ہی تجھے پھر زندہ کروں گا، اور میں نے سارا نظام تیرا نبھانا ہے۔ بس ایک خیال کر، یہ تیری جبین نیاز جو ہے پیشانی، میری چوکھٹ کے سوا یہ اور کہیں نہ جھکے، درختوں کے آگے نہ جھکے، قبروں کے آگے نہ جھکے، مزاروں کے آگے نہ جھکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جب غیروں کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے میرا غضب جوش میں آتا ہے، میرا قہر جوش میں آتا ہے۔
कमीने, अगर तुझे अपनी समझ नहीं, ये इतने जानवर परिंदे मेरी हजारहा मखलूक है, कभी तुमने कोई जानवर नहीं देखा किसी कब्र को सजदा करते हुए। उनको बच्चे भी मैं देता हूँ, औलाद भी मैं देता हूँ, खुराक भी मैं देता हूँ, खिलाता पिलाता भी हूँ मैं। बाज़ी जानवर ऐसे हैं जो बासी परूठा गोश्त नहीं खाते, मैं उनको ताज़ा गोश्त खिलाता हूँ। इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अजीब वाक़या इरशाद फरमाया हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा है, औलाद कोई नहीं, मन्नत मानती है, नजर मानती है। इस क़ालत इम्राअतु इम्रान, इस क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ऐ मेरे बेनियाज बादशाह, ऐ मेरे खालिक व मालिक, जमीन व आसमान की पैदा करने वाले, सारी कायनात की पैदा करने वाले, मैंने तेरे नाम की नजर मानी, मैं तेरे नाम की नजर मानती हूँ, तेरी मन्नत मानती हूँ। इस क़ालत इम्राअतु इम्रान, उसने तो नजर मानी। कुरान में जिक्र करने का क्या मतलब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू आखिरी नबी है, ये आखिरी किताब है, इसके बाद आसमान से कोई किताब नहीं आनी, कोई अहकाम नहीं आने। मैं मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र कर रहा हूँ। क़यामत तक के मुसलमानों में, इंसानों में जो भी ऐसा हो बे औलादा, जिसको औलाद न मिले या बीमार होकर मर जाए, उसको तालीम देने के लिए वो कब्रों में जाके माथे ना रगड़ना, वो इधर उधर दरख्तों की जाके पूजा ना करना। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का तरीका मैं बताता हूँ, अमल तुम कर लेना। इस क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे मौला मैं नजर मानती हूँ, अपने परवरदिगार की नजर मानती हूँ, खालिक व मालिक की नजर मानती हूँ, तेरी बेनियाजी की नजर मानती हूँ, और मेरी हाजतों को पूरा करने वाला कोई नहीं, मेरी झोली पूरी करने वाला कोई नहीं, मेरी गोद को आबाद करने वाला कोई नहीं, मेरे घर को बसाने वाला कोई नहीं। रब्बी इन्नी नज़रतु लक, तेरी नजर मानती हूं, तू ही मालिक व मुख्तार है, सारी कायनात को बच्चे देने पे तू ही कादिर है, नफे घाटे बादे पे तू ही कादिर है। चाहे दर्जनों बच्चे अता फरमा दे, चाहे एक भी ना दे, जिसको चाहूं लड़की दूं, जिसको चाहूं लड़का दूं। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अब युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, जिसको चाहूं लड़का दूं, जिसको चाहूं लड़की दूं, जिसको चाहूं जोड़े जोड़े अता कर दूं। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहूं कुछ भी ना दूं, सारी उम्र तरस तरस के कब्रों में चले जाए। कुरान की बात समझ में नहीं आती, सहाबाए किराम का अमल समझ में नहीं आता, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत समझ में नहीं आती। इतना शिरक है, इतनी बिदअत है कि हद हो गई। जो मना करे उसी को खुश्कवाज करते हैं जी, क्या है खुश्की, ये खुश्क लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें औरतों के वाक़े भी सुना दिए और अपने कुरान में जिक्र किए, कोई तब्दील भी नहीं कर सकता, ज़ेर व ज़बर नहीं बदल सकता,
कुरान के एक हरफ के नुक्ते नहीं कोई बदल सकता। वो भी तो औरत थी, परेशान हाल थी। कहते इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा, मौला जो कुछ मेरे पेट में है तेरी नजर कर दूंगी, मैं अपना दावा ना जताऊंगी, तेरे बैतुल मुकद्दस में छोड़ दूंगी, झाड़ू दिया करेगा, हिफाजत किया करेगा, बच्चा मेरा मस्जिद की सफाई करेगा, कब्र में मेरे काम आएगा। उसका ख्याल भी देखो, बैतुल मुकद्दस में वक़फ़ कर दूंगी, कमाई का मुतालबा ना करूंगी, कमाई मैं मां होकर नहीं मांगूंगी, तेरे घर के लिए वक़फ़ कर दूंगी, बैतुल मुकद्दस में झाड़ू दिया करे, सफाई किया करे, हर वक्त मस्जिद का ख्याल किया करे। और आज मेरा तेरा ख्याल ये है, पहले ही रात को मियाँ बीवी मशवरा करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह लड़का देगा, उसको पब्लिक स्कूल में पहले पढ़ाएंगे ताकि अंग्रेजी अच्छी जान जाए, फिर फलां अफसर बनाएंगे, फिर वो रिश्वत का खून लेकर आया करेगा, फिर हम वो पी पी कर मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें कफन भी रिश्वत का मिलेगा। वो नजर मान रही है मस्जिद के लिए, मस्जिद की सफाई के लिए, मस्जिद में झाड़ू देने के लिए। आज तो अच्छे अच्छे लोगों को तौफीक नहीं, वे खादिम रख छोड़ते हैं, मुलाजिम सफाई किया कर, सफे बिछाया कर। तुम्हें क्या मालूम है इस खादिम को भी इस सवाब नहीं मिलता, इसलिए कि वो तनख्वाह लेकर करता है, नीयत उसकी भी ये नहीं है कि अल्लाह अजर देगा। हदीस की किताबों में आता है क़यामत में ऐन उस घबराहट के वक्त में आवाज आएगी, मेरे पड़ोसी कहां गए। ऐन घबराहट के वक्त में नफ्सी नफ्सी होगी, परेशानी होगी, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज लगेगी, मेरे हमसाए, मेरे पड़ोसी कहां चले गए। अर्ज किया जाएगा इलाहुल आलमीन, आप तो वहदहू ला शरीक हैं, बेमिसल बेमिसाल हैं, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। फरमाया मेरी मस्जिदों में सफाई करने वाले, खिदमत करने वाले, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे हमसाए हैं, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। कोई बादशाह कार दिली, कोई डीसी कार दिली, कोई एसपी कार दिली, कोई वजीर कार दिली, कोई मिंबर कार दिली, अल्लाह कहता है मस्जिद में खिदमत गुजार करने वाला वो मेरे दरबार कार दिली, मेरे दरबार का खिदमत गुजार। और एक हदीस शरीफ में यहां तक आता है कि मस्जिदों का खिदमत गुजार जो है, जानी और माली करने वाला, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि अल्लाह पाक छुट्टी फरमा देंगे कि मस्जिदों के खिदमत गुजार कहाँ हैं। मखलूक इकट्ठी हो जाएगी, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। एक हदीस में आता है अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम मेरे दरबार के खिदमत गुजार हो, तुमसे हिसाब लेते हुए मुझे शर्म आती है, तुमसे हिसाब किताब करते हुए मुझे शर्म आती है, जाओ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। हदीस पाक में आता है कि उस वक्त बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हाजी रोवेंगे, ले भाई हम तो देखते रहते थे कि ये हर वक्त झाड़ू देता रहता है, और कोई काम नहीं, मस्जिद की झाड़ू देने लग गया, और कोई काम नहीं रहा, सफे बिछाने लग गए। हम तो जलील समझते थे, हकीर समझते थे, और आज हिसाब किताब भी ना हुआ। उस वक्त पेशेमानी से कुछ नहीं बनेगा, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। एक जगह आता है कि लोग अफसोस करेंगे क़यामत में, और अफसोस करके इतने अपने हाथों की हथेलियों को मलेंगे कि हथेलियों की खाल उतर जाएगी।
जान उतर जाएगी अफसोस के हाथ मलते मलते। लो भाई ये मेरा पड़ोसी, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, यूं ही पागल सा फिरा करता था, आज अरश के साये में बैठा है। इतना घबराहट का दिन जब बड़े बड़े परेशान है, ये गलियों में यूं ही फिरता था, अरश के साये में बैठा है, खा पी रहा, मजे उड़ा रहा है। उस वक्त रोने से कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह पाक का उस वक्त भी एक ही जवाब होगा। कई लोग अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन गलती हो गई, हम कुरान समझ न सके, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझ न सके। फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील। फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील। इलाही हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम एतराफ करते हैं बड़े गुनाहगार हैं, बड़े स्याकार हैं, बड़ी हमसे गलतियां हुई हैं, अब कोई तौबा करते हैं, कोई रास्ता निकलने का बता। इस अजाब से कहां जाएं? कुरान करीम में है, लोग रोवेंगे, पछतावेंगे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन गालिन। इलाही हमारी बदनसीबी ने हमें मार दिया, हमारी बदबख्ती ने मार दिया, अब हम इकरार करते हैं हम गुमराही में पड़े रहे। रब्बना अखरिजना, रब्बना अखरिजना, इस अजाब से निकाल दे हमारे परवरदिगार। फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। इस अजाब से जान छुड़ा हमारी, इस परेशानी से जान बचा। उस वक्त कई सौ साल, हजारों साल ये पुकारने के बाद गुनाह हो गया, बदबख्ती ने मारा, बदनसीबी ने मारा। कुरान करीम कहता आवाज आएगी इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। चुप हो जाओ, तुम्हें आज बकवास करने की इजाजत नहीं, इजाजत नहीं। तुमने वो वक्त गंवाया, तुमने अपनी सारी जवानी का बेड़ा गर्क किया, उम्र का बेड़ा गर्क किया। आज तुमको हजारों साल, सैकड़ों साल एतराफ करते, माफी मांगते गुजर गए। मैंने तुम्हें ऐसा टाइम दिया था, कितने ही तेरे गुनाह हो, कितनी तेरी स्याकारी हो, कितनी तेरी बदआमाली हो। 2 रकात पढ़ के मेरे सामने झोली फैलाकर 2 आंसू तो बहा के देखता, उन 2 आंसुओं में मैं तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को बहा के ले जाता। 2 आंसुओं के पानी में जो समंदरों में ना बहते, दरियाओं में ना बहते, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तेरा रोने वाला मुंह देखकर तेरे ऊपर करम कर देता। तेरे मुंह बनाने की देर थी, 2 आंसू बहाने की देर थी, सारे गुनाह तेरे मैं माफ कर देता। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा अल्लाह की नजर मान रही है और कहती है फतकब माफी बतनी मुहर्ररा। या अल्लाह, जो कुछ भी मेरे पेट में है, मैं इस पे दावा ही नहीं रखने की, तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी, मुहर्ररा, आजाद कर दूंगी। फतकब्बल मिन्नी। अल्लाह 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 अल्लाह। वालदा मरियम को कितना फिक्र है कि मैं सारी उम्र सजदे करती रहूं, अगर मंजूर ना करे तो बेनियाज है, मंजूर ना करे बेनियाज है। फिक्र है उसे कबूलियत का। कहती है फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला करीमी फरमा, तेरी रहीमी का सदका मांगती हूं, कबूल फरमा।
फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस्समीउल अलीम। तू जो सुनने वाला भी है, जो मैं कह रही हूं तू सुनता भी है, मेरे दिल के हाल को जानने वाला भी तेरे सिवा कोई नहीं। हदीस शरीफ में आता है, चींटी कीड़ी पहाड़ों में चलती है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसके पैरों का खड़का सुनता हूं। पहाड़ों में चलने वाली कीड़ी मकोड़े और पैरों का खड़का सुनता हूं, और एक एक कीड़ी मकोड़े की, करोड़ मखलूक की रोजाना खबरगिरी करता हूं, कौन भूखा है, किसने खा लिया है। दरियाओं में, समंदरों में, पहाड़ों में, फिजा में हजार लखों मखलूक है, सबको खिलाता हूं, सबको पिलाता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नजर अल्लाह की मानी और फिर अर्ज कर रही है रो रो के फतक़ब्बल मिन्नी, ओ मेरे मौला कबूल भी फरमा। मैं कहती रहूं तू कबूल ना करे, मैं तेरा क्या बिगाड़ सकती हूं। एक तरफ अल्लाह का कुरान होता है और एक तरफ बनवाई हुई लोगों की बकवास होती है। ये मुसलमान कौम में बकवास पे एतबार कर रही है, कुरान पे एतबार नहीं करती, अल्लाह की किताब पे एतबार नहीं करती। जिस दरख्त के नीचे जनाब मोहम्मद करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान ली थी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मौत की बैत ली थी, दरख्त के नीचे बैठ के, वो दरख्त भी कितना खुश नसीब होगा जिस दरख्त का जिक्र कुरान में है। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह फरमाते हैं इस दरख्त के नीचे जितने भी बैत करने वाले हैं 1400 सहाबा किराम की जमात, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं सारी जमात से राजी हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। पीरी मुरीदी देखो, मुरीद सहाबा किराम है, पीर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, खुदाई की कसम, शान जलाली की कसम, उलूहियत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जिन लोगों ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की है, मैं इनसे राजी हो गया। और आगे बढ़कर फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जिन लोगों ने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस वक्त बैत की है, तुमने बज़ाहिर मेरे नबी के हाथ पे बैत की है, मगर मैं ये समझता हूं इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैं खुदा के हाथ पे बैत की है, मेरे हाथ में तुमने बैत कर ली। यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, मेरे नबी के हाथ के ऊपर मेरा हाथ था। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। अब मुसलमानों को तो चाहिए ना ऐसा ठिकाना। वो 1400 सहाबा किराम तो जन्नती बन गए, इस दरख्त की ना लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी। वहीं आकर सजदे, वहीं आकर नजर नियाजें, और कहने लगे सुभान अल्लाह, ये वो दरख्त कहती जिसके नीचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और 1400 सहाबा किराम ने बैत की थी सुलह हुदैबिया में। तो ऐसे दरख्त की तो पूजा करनी थी। जनाब फारूक आजम सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हुक्म दिया इस दरख्त को जड़ों से निकाल दो, बिल्कुल इसको काट कर जड़ें उखेड़ दो इसकी। शुक्र है तुम में से नहीं था वहां कोई,
वरना कहता ये फारूक आजम सबसे बड़ा वहाबी है। बात भी सही थी। उसी दरख्त के नीचे नबी ने बैठकर बैत फरमाई और उसी नबी के नीचे दरख्त के नीचे 1400 सहाबा ने बैत की। और ऐसा बरकतों वाला दरख्त जिसका कुरान में जिक्र है, जिसका अल्लाह की किताब में जिक्र है, इतना बाबरकत दरख्त है, फारूक आजम ने खड़े होकर सामने कटवाया, जड़ें निकाल कर फेंक दी। क्यों? फरमाया अब यहां शिरक शुरू हो गया। शिरक ऐसा होगा लोग कुरान को ठुकरा देंगे, शिरक को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा अर्ज करने का मतलब ये कि एक औरत के औलाद नहीं, अल्लाह ताला से वो औलाद मांग रही है। कुरान में जिक्र करने का मतलब क्या है? अगर मेरे तेरे लिए सबक नहीं, इबरत नहीं, मिसाल नहीं, फिर इस कुरान के पढ़ने का फायदा क्या है? बस लोगों ने एक तरीका बनाया हुआ है कि जी कुरान शरीफ मुर्दों के लिए उतरा है, पढ़ पढ़ के बख्शो और मुर्दे जन्नत में पहुंचते जाएंगे। अल्लाह मियां फरमाते हैं जालिमों इतना बड़ा जुल्म ना करो। ऐलान होता है कि जिंदा मर्द जिंदा औरत के लिए, जिंदा औरत जिंदा मर्द के लिए, बाग जिंदों के लिए, फल फ्रूट जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, हवाई जहाज कार रेल मोटर सारी सवारी जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, कोठी जिंदों के लिए, बंगले जिंदों के लिए, महल माड़ी मकान जिंदों के लिए, बाजार मार्केट दुकानें जिंदों के लिए, तमाम निजामी कायनात जिंदों के लिए। और इतना बड़ा जुल्म ना करो, तमाम चीजें जिंदों के लिए, मेरा कुरान मुर्दों के लिए। इसको मुर्दों के हवाले ना करो, मैंने तो ये जिंदों के लिए भेजा है और जिंदा नबी पे नाजिल फरमाया और जिंदा उम्मत को कुरान दिया है। लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती। कितनी फिक्रमंद है मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, रो रही है, झोली फैला रखी है, अर्ज करती है फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे मौला कबूल फरमा, तेरी करीमी का सदका मांगती हूँ, तेरी रहीमी की भीख मांगती हूँ, मेरी इस नजर को कबूल भी फरमा। इसको मेरे पेट में जो है मैंने वो तेरे लिए नजर मान दी, मैंने तेरे लिए वक़्फ़ कर दी, मैं उस पे अपना कोई दावा न जताऊंगी। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। ख्याल था लड़का पैदा होगा, अल्लाह मियां लड़का देगा, मस्जिद की खिदमत करेगा, सफाई करेगा, सारी उम्र झाड़ू पे लगा दूंगी, सारी उम्र अल्लाह के दरबार में बैतुल मुकद्दस की सफाई में खर्च कर दूंगी, घर बुलाऊंगी नहीं, वहीं रखूंगी, वक़्फ़ कर दूंगी अल्लाह के नाम पे। आजकल तो वक़्फ़ की हुई चीज के लिए भी कचहरी में जा खड़े हो जाते हैं, जी अब्बा जी ने वक़्फ़ की थी, मैं तो नहीं की थी, मैं उन्हें दा पुत्र है, मैं वापिस लेना चाहना। अल्लाह के नाम पे देकर भी मुकर जाते हैं, बहाने बना लेते हैं। क्या हमारी मिसाल भी एक मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़, बुढ़ी छोड़ी दा कुक्कड़ गुम थी गया तो गोले बद्दी गलियां विच, आखे या अल्लाह साइया मेरा कुक्कड़ लब वंजे घट्टा दे सा तेरे नां ते, मेरा कुक्कड़ लब वंजे घट्टा दे सा तेरे नां ते। वो कहीं बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है, कुक्कड़ दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेगी? कुक्कड़ लब के घट्टा दे से इवें हाथ हिला के आखन लगी, आके चुप करो, एक बारी लब वंजे देना कौन है? लब्बे तो सही दू नफली चापड़ सा।
آج ہر شخص کا معاملہ یہی بنا ہوا ہے. دلوں میں جھانکو, نظر مارو, اپنے گریبانے میں منہ جھانک کر دیکھو, ہم سارے ایسے ہیں. مصیبت آتی ہے, قرآن کہتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, آرام پہنچاتا ہوں, خوشی پہنچاتا ہوں, کروٹ نہیں بدلتے, 10 بجے تک سوتے ہوئے اٹھتے نہیں, آنکھ نہیں کھلتی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, جوان بیٹا تڑپ رہا ہو, بچہ ساری رات تڑپے, ماں سرہانے بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتی ہے, تیرے سوا کون ہے, تیرے سوا کون ہے, تو ہی میرا معبود ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے. اور جب بچہ ٹھیک ہو جائے پھر وہی عورت خامن کو کہتی ہے میں نظر نیاز بناونی ہے, داتا دے دربار تے جا کے ونڈا کی بال دی میں نظر مننی آئی, منت مننی آئی, اٹھے جا کے دیونا میں. اور لاکھ کہندا رہے بھی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, یہی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے. نو نو نو, میں تو منت ماننی ہے قبر سے کھڑ کے بنڈن دی. مریم علیہ السلام کی والدہ جب پیدا ہوئی, حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے, حیران ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, حیران ہو کر کہنے لگی یا اللہ میرا تو خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا, بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی, ساری زندگی خدمت کرے گا, میرا حصہ مسجد میں برابر پڑتا رہے گا, اللہ کے دربار کا خدمت گزار رہے گا. یہ تو لڑکی ہو گئی, یہ تو لڑکی پیدا ہوئی, اس کو کیا کروں گی, اس کو کیا کروں گی, یہ تو لڑکی ہے. اللہ نے جواب دیا واللہ اعلم بما وضعت, اللہ بہتر جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی بنایا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, 1000 مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے, ہزاروں مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے. اس سے تو میں اپنے قدرت کے تماشے لوگوں کو دکھاؤں گا, نشانیاں دکھاؤں گا. تیرے پیٹ سے یہ جو میں نے لڑکی مریم پیدا کی ہے, اور یاد رکھ پیدا ہوتی بات ہے نا, تو نے میرے حوالے کر دیے, میری نظر ہے, میری نیاز ہے, میرے دربار میں تو نے دینی ہے. خبردار, تجھے اس کا نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں, نام بھی میں خود رکھوں گا. کبھی قرآن کو سمجھا کرو. آواز آتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اللہ فرما رہے میں نے رکھ دیا, اور یہ ایسی مریم ہے قرآن میں قیامت تک میں اس کا ذکر خیر دنیا زمین پہ پڑھے گی, لوگ پڑھیں گے, عورتیں پڑھیں گی, اس کا ذکر خیر قرآن پہ عرش پہ برابر ہوتا رہے گا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, میں نے اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا. اب تو یوں کر, اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے, میری پناہ میں دے دے. منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے, اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے. سیدہ حضرت مریم علیہ السلام, کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا, بھی بچی کیا کرے گی, لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے. وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں. یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی, میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں. کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں.
मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने किताब में देखा था हुजूर के ज़माने में औरतें बैठती थी। मैंने कहा तू बिठा के देख, फिर मौलवियों का इत्तिकाफ भी और नमाज भी सारी का बेड़ा गर्क। मस्जिद, इसने रात दिन मस्जिद में रहना, फिर इत्तिकाफ कहाँ रहेंगे लोगों के। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में आया करती थी नमाज पढ़ने के लिए, अहमियत बतानी थी, अजमत बतानी थी जमात की, कि औरतें भी आकर मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। लेकिन जनाब फारूक आजम सारे कैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मना फरमा दिया। फरमाया अब वो बात नहीं रही, वो तकवा, वो परहेजगारी कहाँ रह गई। अब फारूक आजम कहते हैं हमारे दौर में तकवा नहीं रहा। अल्लाह, अब हम क्या कहें, हमारे पल्ले क्या है, हमारे पल्ले क्या रह गया। पेट में बच्चे लेकर सारी रात वीसीआर देखती है, गाने बजाने सुनती है, सैर तफरी वहां करने जाती है, बेपर्द फिरती है। अब बताओ इसके पेट से मरियम कहां पैदा होगी, गुंडे पैदा होंगे, डाकू पैदा होंगे, बदमाश पैदा होंगे। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा को फिक्र लगा हुआ है, ये तो लड़की है, मैं अब क्या करूं। फरमाया अल्लाह कहते हैं जो तूने रो रो के मांगी थी ना, फतकब्बल मिन्नी मिन्नी फतकब्बल मिन्नी, मैंने ये कबूल कर रखी है, तू इसी को बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दे। मैंने ये कबूल कर रखी, तेरी नजर तेरी न्याज मेरे नाम की माननी, कबूल ना करो। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में ही छोड़ दिया। मेरे तेरे जैसा वो 100 बहाने बना करके, हाँ जी लड़की जात है क्या करेगी जी, चलो इथा ही बैठ के अल्लाह अल्लाह करसी, यहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लिया करेगी। मकसद तो यही था ना, अल्लाह अल्लाह करना। 100 बहाने निकालते। सैयदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस के मेहराब में इत्तिकाफ में बैठ गई। एक दिन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका सारे कैद रजी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों। फरमाया आका न लड़की है न लड़का है, बच्चा ही कोई नहीं, सारी उम्र तरसती रहूंगी, यूं ही अरमान लेकर दुनिया से जाऊंगी। आप दुआ कर दें अल्लाह पाक कोई बच्चा बच्ची अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मैंने की भी और कर भी दूंगा, लेकिन ऐसा एक मसला आज समझ ले, एक मसला आज समझ ले, पैगंबर मैं हूं, आखिरुल ज़मां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं, इमामुल अंबिया मैं हूं, सारी कायनात का सरदार मैं हूं, सारी मखलूक का सरदार मैं हूं। अल्लाह ने कुरान मुझे दिया, किताब मुझे दी, उम्मत मुझे दी, लेकिन एक बात याद रख, ये औलाद वाला कोटा जो है ना, ये अल्लाह ने अपने पास रखा है, ये मेरे पास भी नहीं है। औलाद वाला कोटा मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कितने ना बना लेता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना बाजार जाती हैं, ना मार्केट जाती हैं, ना कोई और खाना लेके आता है, ना कोई खुराक का इंतजाम है, ना कोई पहुंचाने वाला है, ना कोई लाने वाला है, ना खुद बाहर निकलती है, ना खुद खरीदती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आके क्या देखते हैं, वो भी बड़े हैरान थे भी खाती कहां से है। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू हैं, आए तशरीफ लाए, देखते क्या मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे ऐसे फल पड़े हुए हैं बेमौसम में, उन फलों की मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं है, बागात में नहीं है, और ताजे ताजे फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के आगे रखे हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
قال या मरियम قال या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहाँ से आ गए? इन फलों की अब मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, बागो बहार में नहीं, इनकी तो मौसम चली गई और अब आने को बड़ी देर है। ये फल तुझे कौन दे के गया? ये कहाँ से लाई? किस दुकान से खरीद के लाई? कौन से मार्केट से लाई? कौन से बाजार से लाई? बड़ा लंबा पूछगछ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक ही जवाब दिया, قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله میرے خالو آپ تو پیغمبر ہے، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں۔ جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، عقیدہ غلط، اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے میرا تیرا، ساری امت کا، ہماری آل اولاد کا عقیدہ درست فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ایک بات یہ ہے، رمضان کے بعد عجیب بات یہ ہو رہی ہے، آپ لوگ دیر سے آتے ہیں۔ آپ اگر اکثر چھٹی کر لیتے ہیں، اگر میں چھٹی کرنے لگ گیا پھر تم ہی بات کرو گے، بس جی کاریہ نہیں، بڑا لالچی ہو گیا، اب تو جمعہ بھی نہیں آتا۔ تم تو مفتی ہو نا، سکینت میں فتویٰ دیتے ہو۔ میں ہزاروں میل سے بھی بھاگ کر آتا ہوں اور آپ لوگ آہستہ ہیں، چلے جائیں گے جی ابھی تو بڑی دیر ہے، چلے جائیں گے۔ اور یہ قرب و جوار کے تو ابھی خطبے کی اذان ہوگی، اب تشریف لاؤیں گے۔ تو ایسا نہ کرو، قرآن سننے ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے، قرآن سننے کے لیے ذرا وقتی آیا کرو، اس قرآن کی برکت سے میری تیری نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری امت پہ فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کتنا خوبصورت بیان تھا حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کی بیان کیا اور ان کی والدہ کی منت اور نظر و نیاز کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں اس کو آپ کی نظر کر دوں گی اور بیت المقدس میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ وہیں دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ذکر فرمایا، جو آپ نے 1400 صحابہ کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے، جس کو جو ہے تحت الشجرہ کہا گیا، یعنی کہ برکت والا پیڑ کہا گیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ دوستو اس بیعت کا بھی ذکر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں کیا۔ بہت خوبصورت بیان تھا اور بہت ایموشنل بھی تھا، کئی جگہ تو مجھے بھی تھوڑا سا ایموشنل لگا، میرے بھی آنسو نکل آئے۔ دوستو یہ آپ کو بیان کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید خوبصورت بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی آگے نئے بیان میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنائے اور تمام مرحومین جو مؤمنین مؤمنات ہیں، مسلمین مسلمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے آگے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔